So every one of you is working as Android developer, right? Do we have anyone except the Android developer? आई डोंट थिंक कि कोई एंड्रॉयड डेवलपर नहीं होगा हाँ. बिकॉज जेटपैक कंपोज तो एंड्रॉयड डेवलपर ही सीखेंगे. राइट राइट. ऐसा नहीं कोई अगर शायद कोई मल्टी प्लेटफॉर्म वाला बंदा हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि अल्टीमेटली ना दिस see Jetpack Compose it's not like that only Android will use it because ultimately JetBrains is making a lot of efforts and in the future we will see actually at the right time JetBrains has published the multiple versions of the Compose that is usable for desktop as well as iOS. Okay, so it's like it's going to be a multi-platform UI toolkit. Okay, so let's start this session. The first thing is what is Jetpack Compose? Okay, so Jetpack Compose is like a basically yeah. Hi Divyansh. So Jetpack Compose is basically a library. It's a library, right? It's just like that you include the recycler view. Same way you include the Jetpack Compose. So it's not something like built with the system. It's a separate library, UI library that we can use to build the declarative UI. Okay, and by declarative, what I mean is in the past and in the current situation, we used to build our UI with the XMLs, right? So we have one activity where our Kotlin or Java code resides, and we have one XML file which describes our UI, how we want our UI looks to be. Okay, so what Jetpack Compose does is Jetpack Compose eliminate this needs of this XML to building the UI and allows you to build your UI entirely in the Kotlin. Okay, so and one thing Jetpack Compose is Kotlin specific. Okay, like you cannot use Jetpack Compose in Java, so it's specific to Kotlin. You must be knowing Kotlin to learn the Jetpack Compose. इस कोई है इस सेशन में जिसको कोटलिन का आइडिया नहीं है और करंटली वर्किंग इन जावा. गाइस स्पीक अप. हाँ. जावा नो आई थिंक नो मैं जावा में काम कर रहा हूँ एंड्रॉयड में मुझे कॉटलिन का आइडिया नहीं है ग्रेट ग्रेट. ओके, so I will try to keep it as simple as possible so like everyone can benefits of it, but one thing you need to understand that compose is a kotlin specific. You cannot run compose in java. Okay, so this is about what is jetpack compose. And the next thing is why you should use compose. Okay, so you may ask that okay, I know this xml, I can build a great ui with it, why should I switch to another library? Okay, so the benefit actually compose has multiple benefits. The first thing is it's easy means literally it's a way better than xml. Okay, I will show you when we do the live coding. Okay, so it's a very easy. And the second thing is it's a powerful. Okay, so it requires less boilerplate code for you to achieve the same functionality as you would achieve in the xml ui. It's a powerful. The next thing is it's a declarative. A declarative means you describe what your UI should look through your code only. Okay, so I think some of you are familiar with the React Native, right? React Native or yes, React Native. So what React Native does is it breaks down the UI in the components. Like for example, let's say okay, let me show you. Okay, so let's say we have one UI like this. This is our screen, and we have one button here, one button here,
and one text view here. Okay, let's say it's a text view. Okay, it's a text view. This is button. So what React Native do is it requires you to build a component based UI. So what does it mean? Component means here we have three components. One is button, another one is also button, and this is the text one. Okay. So these are the components. Okay, that these are the components you can express through your code. So क्या करना है, जैसे कि अभी एक बटन है, तो इस बटन का मुझे कोड लिखना है। कोई वो कोड भी अब मेरी नेटिव लैंग्वेज जैसे कि इस केस में कोटलिन में ही होगा, राइट? एक्सएमएल की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड वाला बटन है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे कोटलिन कोड ही लिखना है। अल्टीमेटली इन टर्न्स कंपोज विल रेंडर द यूआई, बट मुझे एक्सएमएल नहीं लिखना है, ठीक है? So and the next thing is uh, this is the text view. Okay, uh, so I need to write the code, Kotlin code for the text view, and Compose will render it on the surface. Okay, so anyone has questions till now? Hi Rajesh, Divyansh this side. Yeah, hi. Rajesh, can you please more briefly explain between imperative and declarative coding that we do? Yeah, yeah. Okay. So in declarative coding, what we do is in declarative, we uh, are, specifically declare the things that we want. Right, like let's say I want to build a button. Yes, and so we will express this via the Kotlin code. We will specifically declare in the Kotlin that I want this button. Okay, we will specifically declare this in the Kotlin. In the past, what we used to do was we used to build the XML UIs and only referencing it through the our activity. But in this approach, we are building a component based declarative UI. So in the Kotlin language itself, I'm declaring that okay, I need this UI, I need this button, and this is the uh, third things that I need, that I am specifying only in my code. ओके, आई गेस ये इस काइंड का है कि जैसे हम एक यूआई बना लेते हैं और उसको हम अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड करते थे, तो Mhm. अभी हम एक कस्टम यूआई को अ, हमारा डिक्लेरेटिव पार्ट समझ लेते हैं Mhm. और उसे हम एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ वैसा, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आ, ऐसा ही कुछ है हाँ, कि हम मतलब अभी तक क्या था कि एक्सएमएल्स बना के फिर हम उसको इंक्लूड कर देते थे कि चलो ये भाई मेरा यूआई है, उसको बाइंड करो, ठीक है? वी वर बाइंडिंग द यूआई लाइक everybody have used the find view by id, right? So यस यस we were just binding the our Kotlin code to xml ui, but in यस this approach we are declaring our ui in the Kotlin itself. Okay, we are not binding anything, we are just declaring here. ओके। Okay, great. So I think this does answer your question, Divyans, right? Or Rajesh, I think Android eventually use the on-row method in both the cases, like while using XML and while using this JavaScript Compose as well. So I didn't get the like reason to use JavaScript Compose. okay, so I think I have explained these things before you joined. uh, Okay, So the reasons to use the compose is the first is it's easy. It's way easier than the XML. Okay. The next thing is it's a powerful in terms that to achieve the same functionality you will need a less code compared to the XML. Okay, and it has multiple advantages, but these are the few things that I remember and I will mention here. Okay, as long as we will go through the code, you will understand the difference.
So uh, 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 do we have anyone that has already worked on the compose? कोई ऐसा है जिसने कंपोज पे काम किया हो, या मतलब एवरीबॉडी इज न्यू टू कंपोज? Guys, speak up, huh? Let's make this session interactive. ओके, सो अगर इंटरेक्टिव होगा ना तो ही मतलब, वरना तो क्या बोरिंग टाइप का सेशन हो जाएगा, तो ऐसे तो किसी को भी मजा नहीं आएगा, तो यू शुड स्पीक. नहीं, मैंने आज तक ट्राई भी नहीं किया है। Some of the tools we seen but did not work on it right ओके ओके ओके, तो आप इसी तरह बोलते रहो ना, तो सबको मजा भी आएगा, लोगों को और मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा, जो कि वी ऑलरेडी डोंट नो. ओके, so this is what the compose was, and why we should use it. So now let's do live coding part of the compose. Okay, so I'm using this Canary version of the Android Studio, but you can use the latest stable version, and it has compose support. Okay, so to start a compose project, what you need to do is go to file, uh, new, and the new project. Okay, now you need to select this empty compose activity, click on next, provide all the metadata like package name and save locations and minimum SDK, and click on the finish. Okay, so once you start the compose project, you will have this type of structure already created by the Android Studio. Okay, so we can see in the okay, this manifest is everybody know it's same as XML, so I'm not going into details of it. Okay, so in the Java part, we have this is our package name, my application. Inside we have another package called UI, and the one is main activity. Okay, so this is the main activity for the compose. And one thing, yes, compose should be used for a single activity applications, right? In XML, what we do is we use the multi-activity architecture, like uh, एक मान लो कि एक मेन एक्टिविटी हो गई, एक सेटिंग्स की एक्टिविटी हो गई, एक फिर लॉगिन की या पेमेंट्स की एक्टिविटी हो गई, या फिर यू कैन से फ्रेगमेंट. ओके, सो कंपोज के केस में क्या है, कंपोज के केस में वी शुड ट्राई, लाइक स्ट्रिक्टली रूल नहीं है कि सिंगल एक्टिविटी यूज करनी है, बट वी शुड ट्राई टू keep our activity as only one activity. Okay, बाकी सब composable screens होगी, that we will see. Okay, uh, okay, so uh, the next difference you will notice is this main activity extend the component activity. Okay, so in the XML we used to like extend the app compat activity, but this compose extend the app component activity to provide support for compose in the Android itself. Okay, now this is our usual on create method, super dot on create, और डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है सेट कंटेंट से. ओके, सो अपने एक्सएमएल में वो अपन जैसे रूट अपना रूट लेआउट बाइंड करते थे ना, ये रेस में रिसोर्स में जाके लेआउट फोल्डर से एक्टिविटी एक्सएमएल यूआर बाइंड करते थे, राइट? तो कंपोज में लेआउट फोल्डर्स आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपोज में ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है. ठीक है, तो ये अपना सेट कंटेंट है, ये एक इसका एक्सटेंशन फंक्शन है कंपोनेंट एक्टिविटी का. तो ये सेट कंटेंट क्या करता है कि इसके अंदर जो भी डेटा होगा, ये मतलब एक यू कैन से इट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट? because it's taking a function as a parameter. So set कम कंटेंट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, उसके अंदर आप जो भी यूआई डालोगे, ये एक यूआई है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं. तो आप जो भी यूआई डालोगे उसको बेसिकली स्क्रीन पे एमिट कर देगा. So it's same like
वी वर कनेक्टिंग अवर XML UI टू द एक्टिविटी। तो इसके अंदर आप जो भी UI डालोगे वो एमिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज माई एप्लीकेशन थीम। तो ये बेसिकली ये थीमिंग साइड का हो गया। इससे भी हमें कुछ इतना मतलब इस सेशन में तो लेना देना है नहीं। लाइक इफ यू वांट टू डिफाइन योर कलर पैलेट्स, व्हाट कलर्स यू वांट टू यूज, डार्क मोड, लाइट मोड, तो ये अब आपकी एप्लीकेशन की थीम हो गई। ठीक है, ये ये भी एक क्या बोलते हैं, कंपोजेबल फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज द सरफेस। ओके, सरफेस क्या है? सरफेस एक एरिया है, कंटेनर। उसके ऊपर आप जो भी उसके अंदर आप रखोगे, तो मतलब बेसिकली इट्स अ कंटेनर दैट होल्ड्स द यूआई। सो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यूआई फोल्डर्स में जाके। Rajesh, या so sorry to interrupt. Uh, we use app compat activity for backward compatibility. So does component activity also provide the backward compatibility? Backward compatibility in terms of like so if you use the component activity, it will provide support on uh, on the lowest SDK which Compose can support. Okay, so I think it's 25. I'm not sure, but it's SDK 25. Sorry, 21. Okay. So like Jetpack Compose will like what is the minimum SDK that it will support? So meaning of SDK is like I'm not like quite sure that what is the minimum level that it can support, but I guess it's 21. So in terms of 21 means it was Lollipop, right? Android Lollipop. SDK 21 was Android Lollipop. So Yeah, it is correct. Yes, yes, it's Android 21 level. yeah, sure. Thank you for correcting me. Okay, so it provides the like compatibility with the lowest version Compose can support. Okay, so let's start. Let's create a new Kotlin file. New Kotlin file. So कंपोज में बेसिकली तीन ही कंसेप्ट है यूआई के। कंपोज में बेसिकली यूआई के तीन ही कंसेप्ट है। आपने उस तीन कंसेप्ट को मास्टर कर लिया, देन यू कैन बिल्ड एनी यूआई विद द कंपोज। ओके, सो एक्सएमएल में क्या होता था? एक्सएमएल में आप लाइक लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, अपने कंस्टेंट लेआउट, ऐसे मतलब मल्टीपल टाइप्स के लेआउट थे। तो कंपोज उससे डिफरेंट ये पड़ता है कि कंपोज में आपको सिर्फ मास्टर तीन ही लेआउट करने हैं। ठीक है, तो वो तीन लेआउट कौन से? वन इज फर्स्ट इज द रो, second is the column, and the third is box. Okay, so let's say you have this UI. Okay, like यहाँ पर एक आइकन है। मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझाता हूँ। यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन का टेक्स्ट है। इसको टॉप बार समझ लीजिए आप। यहाँ पर एक आइकन है और एक अ, ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो कंपोज में तीन मेन यूआई कंपोनेंट्स है, रो, कॉलम एंड बॉक्स। ओके, तो रो में क्या होता है? रो अपनी बेसिकली जैसे रो रियल वर्ल्ड में अपन देखते हैं कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये आप यहाँ से देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये बन गई एक रो। ठीक है, ओके, तो ये आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये मेरी एक रो है, उसके अंदर एक आइकॉन है, और और दूसरा है टेक्स्ट बटन। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रो। ओके, सो मेक सेंस, राइट?
यस, तो हम रो का ओरिएंटेशन दे सकते हैं इसमें, हाँ हाँ। लाइक रो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकती है। नहीं, रो उसके ऊपर मैं आता हूँ। रो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही हो सकती है, ठीक है। रियल रियल देखो, रियल वर्ल्ड में रो हॉरिजॉन्टल होगी, यस। मतलब वो तो कॉलम हो जाएगी ना फिर। हाँ। हाँ, तो रो तो सॉरी, रो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिक तो ओके, तो ये रो हो गई, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कॉलम। तो ये हो गई ओके। अपनी रियल वर्ल्ड में कॉलम, ठीक है। जैसे वर्टिकल होती है कॉलम, तो जैसे कि अपना रिसाइकलर व्यू समझ लीजिए आप। तो रिसाइकलर व्यू में जैसे अपन लिस्ट देते हैं, राइट, ऐसे, ठीक है। ऐसा अपना रिसाइकलर व्यू होता है, राइट। तो ये हो गई ये कॉलम। रियल वर्ल्ड में अपन देखते हैं कि ये वर्टिकल है कॉलम। तो ये यूआई को विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरी एक कॉलम है, उसके अंदर ये मेरा टेक्स्ट, ठीक है, राइट। रो एंड कॉलम मेक सेंस। यस। बेसिकली जो जो वर्टिकल जो भी हमें दिखानी होती है लिस्ट, फॉर दैट वी हैव अ कॉलम एंड फॉर हॉरिजॉन्टल वी हैव अ रो। करेक्ट करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ओके, तो वर्टिकली जो दिखाना है उसके लिए रो, सॉरी हॉरिजॉन्टल के लिए रो, वर्टिकल के लिए कॉलम, ठीक है। उसमें आगे एडवांस है, बट दिस इज द बेसिक, दिस इज द लाइक, आपने इन तीन को मास्टर कर लिया, यू कैन बिल्ड एनीथिंग इन कंपोज। ओके, तो ये एक अपन हॉरिजॉन्टल रो है, अपन वर्टिकल कॉलम है। दूसरा लास्ट वाला है बॉक्स। बॉक्स क्या करता है, ये अपना एक स्क्वायर बॉक्स है। ये अपना एक स्क्वायर बॉक्स है। तो इसमें आपको मान लो एक ऐसे समझ लो कि ये आपका पैकेजिंग बॉक्स है। जैसे कि अपना ये कुरियर्स वाले देते हैं, पैकेजिंग बॉक्स है। तो इसमें एक आइटम मेरी यहाँ पड़ी है, एक आइटम मेरी यहाँ पड़ी है, एक आइटम मेरी यहाँ पड़ी है, जैसे रख सकते हैं ना अपन। कोई स्क्वायर बॉक्स मान लो, तो उसमें आप कहीं पर भी रख सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। यस। एक आइटम यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पर पड़ी है। तो लाइक यू कैन बिल्ड थिंग, यू कैन पुट थिंग्स आर्बिट्रेरी, लाइक देयर इज नो ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल ही रखो या वर्टिकल ही रखो। यू कैन बिल्ड, यू कैन पुट थिंग्स आर्बिट्रेरीली। तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कंपोज में बॉक्स। तो फर्स्ट इज द रो, सेकंड इज द कॉलम एंड द थर्ड इज द बॉक्स। सिर्फ तीन ही कंसेप्ट है कंपोज में, ये तीन ही सीखने हैं। अगर तीन आ गए तो फिर आपको मतलब पावरफुल हो जाएगा कंपोज। ओके ओके। ओके। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस रो कॉलम एंड बॉक्सेस? किसी को, हाँ, वन थिंग टू नोट, किसी को क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ लेना। ऐसा नहीं मतलब कि मेरा क्वेश्चंस तो सबको पता ही होगा, तो मैं पूछूं तो थोड़ा वो लगेगा, ऐसा नहीं। आप यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन इवन आस्क द थिंग दैट आई डोंट नो। ओके, तो अगर मुझे नहीं पता है तो आई विल से दैट आई डोंट नो। But I have one question. या श्योर। Yes. So I have a current application built on Java, and now we are moving to that योर quite वॉइस old. इज ब्रेकिंग, नहीं ना? Okay. What? Is it only me or everyone has our voice breaking? No, actually it's not audible. Okay, yeah, so no, it's still like it's on low volume. So if it's not possible, you can ping in the chat, right? And I will have a look. Yeah, I got some question from her. Actually, she was trying to ask, like there is already she's having a project where it Okay, is developed in Java, okay. and I think she wanted to add Jetpack in that project. How to add that? I think so. This is a question from her, Uh, and from me also. I wanted to ask this question. yeah, okay, okay, For sure. existing project, how to add a Jetpack compose? Okay, so Compose is like a fully compatible.
with the XML UI. So you could add compose based components on the XML UI as well as XML based UI on the compose project. So it's fine. But for Java, as I said, at this point of time, I'm not sure that you could use like compose based things in the Java project, because I the one thing that I know is you can use the compose based project on the XML based Kotlin project. But for Java, I'm not sure, because I left Java long ago. Okay, so for the Java side, I'm not quite sure. Okay. Rajesh, can I continue? Is it audible now? Okay. Yes, yes. It's Yeah. Uh, right. So what my question is, my current application is in Java, it's quite good, and now we are going to split the task project. So we are planning to into check the compose. But as you said in the in the introduction of Jetpack that we require only one activity throughout the app. Is it like throughout the app we'll have only one activity, or we can use uh, XML and compose both in a same project? uh, yeah. Okay. Okay. So I got the question. Yeah. Right. So the thing is, as I've said, you should use single activity, but I haven't said you must use single activity. You can have even multiple activities on the on the compose only projects, and it's fine. There is no issue. But if you are starting your project in compose only, you should try to be adhere to the principle, single activity principle. So if you are coming with the XML background, or if you need to use compose in the XML UI, it's fine to have multiple activities, no issues. Okay, okay. Okay, so this answers your question, right? Yes. Thank you. Yeah, sure. Okay, so let's build some code with the compose to get the more idea. This is the common architectures. One is row, one is column, and one is the box. Okay, so the first thing, in what whenever you want to emit an UI. So okay, let me write it. Okay, my Rajesh, I have one question. yeah, sure. Like we can place multiple rows in column. Yeah, 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 yeah. Correct. Good question, Deepak. Yeah. So, you can use the combination of rows, columns, and boxes into whatever you want, however you want. Okay. So, like you can use multiple rows in a column, multiple column in a rows, multiple boxes in a column. Okay. So you could use it the way you want, but Okay. this is the things that you need to remember. For horizontal, it's row. For vertical, it's column, and for arbitrary things, it's a box. Okay. Okay. So let's analyze the composable functions. This is how you can create a composable function. Uh, composable. This annotation tells the compose compiler that there is something inside this function, and I need to emit it on the UI. Okay, so fun test. Okay, so if I write this things like it, this is a normal Kotlin functions. Okay, and compose compiler won't do anything on it. But if I use the composable annotations, as you can see, composable functions are the fundamental building blocks of the application built with the compose. Okay, so अगर मुझे कुछ ड्रॉ यूआई पे कुछ भी ड्रॉ करना है, लेट्स से कुछ भी टेक्स्ट रखना है या कुछ भी, तो मुझे composable यूज करना पड़ेगा, because that is the only way compiler will know that okay, I need to emit this on the UI. Okay, and Okay. another important thing is composable functions can only be called from another composable, right? Apne Most of you guys have experience with the coroutines, and as you know that suspendable functions can only be called from the suspending functions, right? Suspended. राइट, ओके. सो सेम वे अगर मैं इस फंक्शंस को यहाँ पर कॉल करूँगा,
तो ये एरर देगा, ठीक है, राइट। As you can see, composable invocations can only happen from the context of the composable function. तो ये अपना एक है, ठीक है। तो अभी इसमें यूआई अपन मैं स्प्लिट व्यू कर देता हूँ तो आप लोगों को भी इजी रहेगा। तो अभी मान लो मुझे सिर्फ अपना एक टेक्स्ट या एंड वन मोर थिंग, हाँ, एक्टिविटीज में क्या होता था कि यू नीड टू डिप्लॉय दोज एक्टिविटी टू योर डिवाइस टू सी द प्रीव्यू, बट कंपोज के केस में ऐसा नहीं है। कंपोज के केस में आप ये अपना ये प्रीव्यू व्यू देता है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो कैसा यूआई बनेगा, और इंडिपेंडेंटली डिवाइस पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी एक्टिविटी ही डिवाइस पे डिप्लॉय करनी है। इफ आई हैव ओनली वन टेक्स्ट व्यू, that I can deploy the text view to the UI device. Okay, so अभी अपन मान लेते हैं कि मुझे वेलकम कंपोज एमिट करना है डिस्प्ले पे। तो उस कंपोज ना जैसे कि अपने XML में UI होते थे ना, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ऐसे व्यू होते थे, राइट। Yes. अब तो कंपोज भी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे व्यूज ऑलरेडी बना के देता है, जो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना है। ओके, तो एक ऐसा कंपोजेबल है टेक्स्ट करके, ये अपना टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट में अपन को स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, वेलकम टू कंपोज। ओके, तो अभी क्या होगा, इस पे कंपोजेबल एनोटेशन है, तो कंपाइलर को पता है कि मुझे भाई इस प्रोजेक्ट में माय कंपोजेबल फंक्शन जब भी कॉल हो तो मुझे इसको इस टेक्स्ट को रेंडर करना है, ठीक है। तो अभी अपन उसको प्रीव्यू करेंगे, ये प्रीव्यू यहाँ पर साइड में देखने के लिए। तो उसके लिए आपको एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना है और उस पर @प्रीव्यू एनोटेशन डालना है, ठीक है। तो माय कंपोजेबल प्रीव्यू, अगर किसी को भी इन बिटवीन क्वेश्चन हो ना तो जस्ट आस्क मी। तो अभी मैं उस फंक्शन को यहाँ से कॉल करता हूँ, माय कंपोजेबल। सी दिस इज द कंपोजेबल एंड इट कैन ओनली बी कॉल्ड विद द कंपोजेबल फंक्शन। तो अगर ये प्रीव्यू है तो आईडी को पता है कि मुझे इसको प्रीव्यू करना है। तो अभी अपन पहले इसका प्रीव्यू देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो यस, राजेश, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अब इसमें हमने तो इसको कोई प्राइमरी लेआउट यानी रो या कॉलम नहीं दिया, तो यानी ये कौन सा इसका प्राइमरी होगा? यानी XML में तो हमें एक प्राइमरी लेआउट देना होता है ना, राइट हम कोई लीनियर देते हैं, तो मैं इसमें तो हमने डायरेक्ट मैं अभी उस पे आता हूँ। सी, वी आर नॉट डिप्लॉइंग जी एनीथिंग टू डिवाइस। ओके, ये अपना मेन एक्टिविटी ठीक है, ये मेन एक्टिविटी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस पे तो अभी हम गए ही नहीं, ठीक है। मैं ठीक कंपोज ठीक आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ठीक, ये हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं यानी कि हाँ, उसका कोई करेक्ट किसी तरह करेक्ट का। करेक्ट, कंपोनेंट्स बना रहे हैं कि ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उसमें एक टेक्स्ट बटन है, ठीक है। तो ठीक हो राइट, तो ये जैसे कि अपन XML में भी कई लोगों ने बनाए होंगे कस्टम व्यूज, राइट, लाइक you want to use a view multiple times, so you can you can write a custom view including all the views you want। तो ऐसे हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो सी, अगर ये डिप्लॉय होगा डिवाइस पे तो ये क्या करेगा, ऐसे दिखाएगा वेलकम टू कंपोज। तो अभी क्या करना है अपने को, लेट्स से अपन दो नाम दिखाना चाहते हैं, तो लेट्स से मुझे दो नाम दिखाने हैं, एक यहाँ पे और दूसरा उसके बाजू में, ठीक है। हाँ, तीन, चलो तीन रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द माय एक्सप्लेनेशन इसके लिए कौन सा लेआउट होगा कंपोज में, के लिए कॉलम। एनीबडी नोज? रो Bro. Yeah, correct, row is the correct answer because see, we are using the horizontal things, right। तो इसके लिए ये तीनों एकदम हॉरिजॉन्टल लाइंस में है, तो इसके लिए रो लेआउट होगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर एक रो बनाता हूँ, ये रो है कंपोज। ओके, इसमें मैं 3 टेक्स्ट व्यू डाल दूंगा, वेलकम टू कंपोज। ओके, तो ये रो के इनसाइड 3, ये रो का कंटेंट है, ठीक है। रो फंक्शंस के अंदर जो भी होगा उसका वो कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रो के अंदर 3 टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो कंपोज कंपाइलर उसको इंटरप्रेट करेगा इस तरह से, ठीक है। फिर अभी ये रो कौन से फंक्शंस में, माई कंपोजेबल। तो ये माई कंपोजेबल मेन एक्टिविटी में से कहीं पर कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी हम इसको, ये सरफेस भी एक कंपोजेबल है, ठीक है। तो उस पर हम फिर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये भी एक कंपोजेबल है, ये बेसिकली प्रोवाइड अ स्क्रीन एरिया। तो अभी मैं इसको यहाँ पर से कॉल करता हूँ ऐसे, और ये ग्रीटिंग्स वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। ये ग्रीटिंग्स भी एक कंपोजेबल था। तो सी, अभी क्या होगा जब ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, ऑन क्रिएट कॉल होगी, सेट कंटेंट कॉल होगा, इसकी थीम लगेगी जो भी डार्क मोड है या लाइट मोड, उसके फिर उसके अंदर एक सरफेस ये ड्रॉ करेगा कंपोज कंपाइलर, और सरफेस के अंदर ये अपना ये कंपोनेंट्स जो अपने बनाए हैं ये ड्रॉ करेगा, ठीक है, माई कंपोजेबल। तो लेट मी शो यू, लाइक ओके। तो पहले मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, ये अपना प्रीव्यू है। तो ये अप टू डेट तो नहीं है भाई, अप टू डेट करो इसको। ओके, सो कंपोज में क्या पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, आपको सोचना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कंपोनेंट्स, एंड इट्स वे बेटर देन एक्सएमएल, बिकॉज आपने एक बार कंपोनेंट्स बना लिया तो वो यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स हाउ एवर यू वांट्स। ओके, सो अभी ये प्रीव्यू हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो देखो ये 3 कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला। ये दूसरा देखो, इसमें इसमें लाइंस दिख रही है ना स्क्रीन शेयरिंग में, ब्लू लाइंस, जी जी। यस। ठीक है। तो ये दूसरा वाला टेक्स्ट ये रहा, और ये तीसरा वाला, थर्ड वाला ये रहा, ठीक है। हो गए तो तीनों 3 हॉरिजॉन्टल में ऐसे यस 3 यस। रख दिए। नाउ लेट्स गो विद द कॉलम्स। बेसिक्स क्लियर करते हैं पहले। तो इसका नाम बदलता हूँ मैं, फिर कर देता हूँ इसको माई रो एग्जाम्पल। तो अभी कॉलम का एग्जांपल देखते हैं। अब ये अपना लाइव टेम्पलेट है एंड्रॉइड स्टूडियो का। आप कॉम्प लिखोगे ना, COMP, तो ये कंपोजेबल फंक्शन बना के देगा टू लाइव टेम्पलेट। तो इसका नाम देते हैं माई कॉलम एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस ये कंपोज देता है रेडी ऑलरेडी क्रिएटेड कॉलम नाम का कंपोजेबल। ये कॉलम हो गई, इसमें अपन वही करते हैं ये वाला। तो कॉलम के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल्स जाना चाहिए, राइट। तो लेट्स प्रीव्यू इट। माई कॉलम एग्जांपल, माई कॉलम एग्जांपल प्रीव्यू। So you can preview the multiple things. So let it load, ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडियो ना लोडिंग होगा ना, तब तक तो साल बीत जाएगा। Rajesh, can we use like multiple functions with preview annotation?
Yeah, yeah, you can use. See, I have used are you asking this way? Can we use my column example function? Inside this? Yes, yes, First, yes. yes, yes. Like this, right? Yeah, it will work. Rajesh, can one preview call another preview function? One preview call another no preview uh, ऐसे प्रीव्यू में तो ये इश्यू होगा कि मतलब वो प्रीव्यू वाला प्रीव्यू को ही कैसे कॉल करेगा तो Okay, okay. लाइक सेकेंड फिर भी अगर ऐसा कोई वेज है तो दैट आई डोंट नो बिकॉज ओके सो ये अपना आ गया रो वाला सी दिव्यांश यू हैव आस्क्ड दैट कैन वी यूज मल्टीपल थिंग्स यस ये पहले पहले रो वाला ये वाला ठीक है फिर ये कॉलम वाला ये वाला एंड फिर अपना ये कॉलम वाला एग्जांपल ये आ गया ठीक है राइट rows and column make sense right anyone has any questions Yeah, all makes sense. great आप इसको और डीपली बताने वाले हो या फिर मैं पूछ सकता हूँ कुछ राजेश? हाँ मैं बताऊंगा तो सही बट आप पूछो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो जैसे मेरा यही क्वेश्चन है कि आई नो कि इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, टेक्स्ट का हम हाँ साइज, हाँ कलर, ये सब yeah चीजें कर सकते हैं और yes हम टेक्स्ट व्यू का जैसे रो कॉलम का हम साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ लाइक हाँ जैसे मुझे एक रो सिर्फ 45 डीपी की चाहिए जैसे मुझे, या फिर उसकी विड्थ इतनी ही हो, तो ऐसा कुछ इसमें है या फिर कैसे, मतलब कैसे अचीव कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ उसमें कि है मुझे एक रो तो पूरी चाहिए लेकिन एक कॉलम चाहिए जिसकी हाइट लाइक 100 डीपी हो, बस उससे ज्यादा ना हो, yeah ऐसा right कुछ। right हाँ तो like okay so one guy is asking for the link who's this Mr. Bawa Yeah, I sent a message to him about it. yeah, yeah. Okay, thank you. Okay, so yeah, Deepak, you can do that things that is called modifiers in the compose world. Basically, they are attributes that you apply to any composable. But उस पे हम अभी ये basics clear होने के बाद आते हैं, right? तो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम्स और दूसरा लास्ट वाला बॉक्स पे नहीं जाता हूँ क्योंकि मतलब लाइक तो थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा तो फिर बॉक्स फिर देखेंगे मतलब आज ही लेकिन लेटर ओके तो ये रो हो गया ये कॉलम हो गया तो अभी मेन एक्टिविटी से मैंने इसको ये कॉल किया ठीक है तो अभी मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ डिवाइस पे ये अपने पिक्सल पे अपन देखते हैं डिस्प्ले पे कैसा होगा अभी ये वन थिंग राइट सी कि अभी क्या होता है देखो ये आपको कुछ बैकग्राउंड्स नहीं दिख रहा ऐसे ही उसने हमने टेक्स्ट लिखा और उसने ये अपने ऐसे ही मतलब एज इन द टोटल रो फॉर्म उसने प्रिंट कर दिया तो ये सरफेस क्या करता है ये सरफेस एक बैकग्राउंड देता है उसको कि चलो भाई मैं एक सरफेस हूँ मेरे पे आप जो भी प्रिंट करना है करो ठीक है तो लाइक इफ यू यूज सरफेस लाइक दिस ठीक है इसको एक सरफेस पे रखो तो इसको का जो प्रीव्यू बनेगा ना वो एक कंटेनर के अंदर होगा अभी अभी दिखाता हूँ मैं आपको Rajesh, can we give different background or a color to a surface? colors to this composable right Like for the surface, the surface yeah for the yeah whole side. yeah 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 Any it, properties? it has every composable has property called modifier that we will see in a few minutes okay so ये देखो ये अपना ये था ये प्रीव्यू ये रो फॉर्म में है ये सरफेस वाला दिख रहा है अपने को वाइट बैकग्राउंड में वाइट है क्यों बिकॉज इफ यू गो टू द सरफेस डेफिनेशन
आप सरफेस की डेफिनेशन में जाओगे ना तो इतना है नहीं कर रहा। हम्म, आ, देखो इसका कलर्स कौन सा है, मटेरियल थीम डॉट कलर्स डॉट सरफेस। ओके, तो इसका कलर कौन सा है, बाय डिफॉल्ट कलर अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो मटेरियल थीम डॉट कलर्स डॉट सरफेस। तो अपनी यूआई इसमें जाएंगे कलर्स में, नहीं थीम्स में, ठीक है। तो ये आ, हाँ लाइट कलर, देखो ये अब यहाँ पर ओवरराइड नहीं किया है, बट अगर आपकी लाइट कलर पैलेट है तो इस तो सरफेस का कलर ऑन सर, तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर वाइट है, राइट। सरफेस का वाइट है, ऑन सरफेस का ब्लैक है, तो सरफेस पे जो भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट उसका कलर होगा ब्लैक, तो सरफेस का कलर होगा वाइट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें दिख रहा है वाइट कलर। प्रीव्यू कहाँ गया, ये वाला, तो ये यहाँ पर दिख रहा है वाइट कलर, ठीक है। तो सरफेस इज बेसिकली ये कंटेनर, आप उसको लाइक not basically like recycler view and layout manager, but basically it provides a surface, जैसे रियल वर्ड्स में अपनी सरफेस होती है उस पर कुछ रखते हैं, तो ऐसे सरफेस प्रोवाइड्स अ सरफेस। ओके, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाए फिर अपन इस पे इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। Rajesh, if it takes time, we can continue. Like some devices take time. Yes, right, correct. So let's start and then now we will have a look at the properties. So abhi some of you has asked that can we provide colors and all the things. Yeah, we can do it. In a compose we have a concept called the modifiers. What modifiers do, as the name suggests, it modifies the composable things, components. Okay, so for example in XML you have attributes like providing colors and shapes and background colors or even the corners. Okay, if it's an image view or a card view, you can provide the corners, right? So in the compose we have a concept of the modifier. Okay, modifier is in interface and using the builder pattern to builds the modifier like okay, so रो अभी हमने ये यहाँ पर रो okay, यहाँ पर हमने रो डिफाइन की है, रो डिफाइन की है, कोई मॉडिफायर नहीं दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो डिफॉल्ट मॉडिफायर यूज करेगा। डिफॉल्ट मॉडिफायर मतलब कुछ नहीं, सी मॉडिफायर मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, अगर ये एक ही मॉडिफायर है तो दैट मीन्स डू नथिंग टू द कंपोजेबल एंड रेंडर इट एज इट इज। ओके, तो ये है अपना मॉडिफायर, अपना मॉडिफायर इंटरफेस। तो you can think of modifier as different properties you can apply to the composable। ओके, तो ये प्रीव्यू रन हो गया अपना रो वाला, दिखे तो ये डिवाइस पे दिख रहा है वेलकम टू जेटपैक कंपोज। ओके, ये अपना रो वाला है, सी वी हैव कॉल्ड इट फ्रॉम हियर। ओके, तो ओके, सो नाउ कमिंग टू द मॉडिफायर, लेट्स से कि मुझे लाइक हम सिर्फ कंपोजेबल डाल सकते हैं उधर, प्रीव्यू वाला सिर्फ प्रीव्यू के लिए रहता है, राइट ना राजेश? दक्षा केवल रूम मोबाइल कहाँ पे दिव्यांश, सॉरी दीपक, सॉरी दीपक हूँ मैं। सॉरी मैं पूछ रहा हूँ जैसे कंपोजेबल जिसकी एनोटेशन होती है उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने व्यू में, लाइक मेन एक्टिविटी में, बट जो नीचे हमारा प्रीव्यू वाला एनोट कर रहा है ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए है कि हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, ये इसको भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, प्रीव्यू वाला ऐड करने के लिए नहीं है, प्रीव्यू वाला सिर्फ चेक करने के लिए है। इवन इफ यू कीप दिस प्रीव्यू इन योर फाइनल बिल्ड एप्लीकेशन बिल्ड, like Android tools will remove it from the code। Okay,
तो मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोड की साइज बढ़ जाएगी. यू कैन कीप एज मेनी प्रीव्यू एज यू वांट. रिव्यू सिर्फ आपके मतलब देखने के लिए है कि हाउ कंपोजेबल्स आर डिस्प्लेइंग. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू मॉडिफायर. ओके, सो लेट्स से इस रो को हमें ये पूरी एंटायर रो को हमें मान लो रेड कलर से भर देना. ठीक है, so if you go to the row, we have four options: modifier, horizontal arrangement, alignment, and the content. Content is a higher order function. So ये अपना जो है कंटेंट पैरामीटर है, राइट. तो अपन मॉडिफायर अभी इसको देते हैं, अपन को इसको करना है रेड कलर से. सो व्हाट वी विल डू इज मॉडिफायर इक्वल टू, always start your modifier with the this modifier interface. Modifier dot, इस इंटरफेस के पास सारी वो मेथड्स है जो that we can apply to a composable. So let's say we can see a back, इस मेथड को कॉल करते हैं बैकग्राउंड. इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज है. कलर्स अपने यूज के लिए अभी, बाकी तो कई है. कलर्स, शेप, ओके 2 है सॉरी. तो कलर्स के लिए हम प्रोवाइड करेंगे कलर डॉट रेड. ओके, ये अपना रेड, ये इनबिल्ट कलर है. ठीक है, तो नाउ इफ यू, ओके ये इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि जो आपको प्रीव्यू में दिखे वही इस पे ही दिखेगा, राइट. तो इसका लोड नहीं लेना है खाली कोटा. तो अभी नाउ लेट्स रिमूव ऑन सॉफ्टवेयर. अभी हमने इसको बैकग्राउंड दिया है रेड कलर का, तो वी कैन इट विल प्रिंट द बैकग्राउंड्स टू द रेड कलर. ओके, So Rajesh, meanwhile it is loading, I have a question. या श्योर. So Rajesh, once we are actually working on this colors, so we have to use the inbuilt class colors. We are not allowed to use the r.color dot what we have in the resources. No, you can see in the XML we used to define our colors here, right? R dot color, you can see, right? Yes. So in the compose world we define colors here, UI, theme, and in this color file. Okay, like you can Okay. define it anywhere and you can reference it like let's say I want to use this purple color. Okay, so I can define it as an extension, a variable on the colors, like well, color is basically composable class, sorry, compose class of compose, equal to purple, sorry, uh, extension property cannot No problem, Rajesh. I just wanted to know, like, can we use the yeah. colors, the colors.xml only? सी, ओके, वहाँ से reuse कर सकते हैं क्या? हाँ यहाँ से सी कलर्स यहाँ से यूज करने का आई एम नॉट क्वाइट श्योर. स्ट्रिंग्स का मुझे ख्याल है बिकॉज आई डू यूज इट इन डेली. सो स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं. इसके लिए भी क्या होता है कि कंपोज एक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू यूज दिस स्ट्रिंग्स, कंपोज विल प्रोवाइड दैट स्ट्रिंग रिसोर्स. एक स्ट्रिंग रिसोर्स करके कंपोजेबल फंक्शन है, उसमें आप इसकी वैल्यू पास करोगे r डॉट स्ट्रिंग्स डॉट एप नेम, तो वो फेच कर लेगा. ठीक है, तो सिमिलरली कलर्स के लिए भी होगा, बट यूजुअली वी डिफाइन कलर्स इन दिस फाइल. ओके, Okay. बिकॉज XML का यूज तो जितना हो सके उतना कम ही रखना है, क्योंकि दैट इज द पर्पस ऑफ द कंपोज. Okay. Now example. So like ये build हुआ नहीं है अभी. So फिर मैं हाँ, and one more thing, XML में क्या होता था कि
आप एट्रीब्यूट्स कहीं पर भी दो, जैसे कि एक लाइन में आपने लिख दिया कि ये रो मैक्सिमम विथ एक्वायर करनी चाहिए, दूसरी लाइन में लिख दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, तीसरी लाइन में लिख दिया कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो आप कहीं पर भी कुछ भी लिखो तो चल जाता था, ठीक है, इट प्रोड्यूस द सेम यूआई। बट इन केस ऑफ कंपोज, ऑर्डर्स ऑफ द मॉडिफायर्स डू मैटर। आपने जिस ऑर्डर में मॉडिफायर लगाया होगा उसी ऑर्डर में वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो Okay. now you can see that background is red color, okay. And okay, so now let's, I want to see that this row to acquire the whole width and then apply background। तो अगर मुझे फुल लेनी है विथ तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर डॉट एक फंक्शन है फिल मैक्स विथ, तीन फंक्शन है, फिल मैक्स विथ, फिल मैक्स हाइट एंड फिल मैक्स साइज। फिल मैक्स विथ क्या करेगा, हॉरिजेंटली पूरी स्पेस ले लेगा, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ तक डिवाइस की जितनी भी स्पेस लेगा, ये फंक्शन अगर अप्लाई किया तो ये रो वाला कंपोजेबल ये पूरी स्पेस ले लेगा, ठीक है। फुल मैक्स हाइट यूज किया तो डिवाइस की वर्टिकली जितनी भी स्पेस होगी ये कंपोजेबल ले लेगा, फिर किसी को कहीं पर कुछ रखने की जगह ही नहीं मिलेगी क्योंकि इसने ले लिया है। फिल मैक्स साइज, तो इट एज नेम इम्प्लाइज इट विल टेक ऑल द हाइट एंड द विड्थ, तो पूरी स्क्रीन पे यही होगा, ठीक है। तो अभी अपन फुल मैक्स विड्थ पे करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको रेंडर करते हैं। एक आई बिलीव एक सेशन में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा ही हो पाएगा बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो लेट्स सी, सी इसने पूरी रो एक्वायर कर ली है, राइट, यू कैन सी। एक्वायर करने के बाद फिर उसने बैकग्राउंड लगाया है। इफ आई चेंज द ऑर्डर ऑफ द मॉडिफायर, ऐसे मैं इसको ऐसे ऊपर ले लेता हूँ, हाँ ऐसे। तो अभी क्या होगा, अभी आप देखो, अभी आप पहले ये रो के कंटेंट को बैकग्राउंड लगाएगा, फिर उसका लेगा, उसको फिर लेगा फिल मैक्स। हाँ, इसमें इसका क्या वो पता नहीं पड़ रहा है, बट अभी अभी आगे कहीं आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर्स ऑफ द मॉडिफायर डू मैटर, ओके। I think maybe the screen did not refresh. Yes, that could be। तो ये वाला ये कैनरी बिल्ड है बहुत स्लो है कंपेयर टू स्टेबल। राजेश, आई थिंक अभी आपको मैकबुक प्रो ले लेना चाहिए। राइट राइट, अरे यार कोई मुझे स्पॉन्सर करो, मैं मैकबुक प्रो ले लेता हूँ। ये वाला ना बेसिकली थोड़ा स्लो है, ये अपना कैनरी बिल्ड है वो। तो अभी वो स्टेबल में करूंगा ना तो टाइम लग जाएगा, तो लेट्स गो विथ इट बिकॉज इसमें फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना वो सब इट विल टेक टाइम। Okay, Rajesh, you can continue. या ओके, सो ऐसे मॉडिफायर इसको अप्लाई करते हैं, राइट। ये हो गया अपना मॉडिफायर, बैकग्राउंड है, फिल मैक्स विथ है, ऐसे कई सारे जैसे कि आपको बॉर्डर सप्लाई करनी है तो फिर आपको ऐसे ऐसे बॉर्डर करके ये मॉडिफायर मिल जाएगा। सो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर। आपको उसको शेप या इन वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको उसको कोई शेप देना है, जैसे कि like you want to provide a rectangular shape to your row, so what you can use the clip function, okay, to the modifier, and in the clip it takes the shape, okay, so shape rounded corner shape, size होगी उसकी 8.dp, नहीं थोड़ा विजिबल हो उतना रखता हूँ 30 dp, let's see the 30 dp। तो ये फिल मैक्स विथ ले लेगा
फिर उसको क्या करेगा, 30 dp का राउंडेड कॉर्नर शेप देगा इसको फिर। ओके, यहाँ पर डायमेंशन इस तरह से देते हैं, मतलब 30.d। हाँ, डायमेंशन उसमें ऐसे देते हैं, जैसे डीपी में देना है तो ये डीपी बेसिकली एक्सटेंशन फंक्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं, वेरिएबल, एक्सटेंशन वेरिएबल इंटीजर पे, ठीक है, ओके इंटीजर पे डबल पे, तो सो इट विल गेट द डीपी वैल्यू ऑफ द इंटीजर, राइट। ओके। हाँ, इसे देते हैं। राजेश, कोई ग्रेविटी के लिए भी है? हाँ हाँ, तो इसमें ये प्रीव्यू में शायद आई गेस उसको उतना पता नहीं पड़ रहा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बट अगर स्क्रीन होती ना तो ये इसको यहाँ से ऐसे करके राउंड कॉर्नर मार देगा, राइट। तो इसमें इसको हटा देते, अच्छा। ओके, तो ये हो गया अपना रो। ओके, और हाँ, दीपक आप कुछ पूछ रहे थे अभी। ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी मतलब किस चीज को कहाँ रखना है, राइट। हाँ एग्जैक्टली। मैं ओके, चाह रहा हूँ कि अभी जैसे ये अभी हमारी इनकी अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड में है, हमारी रो का अलाइनमेंट पूरा लेफ्ट साइड में है, राइट। हाँ हाँ लेफ्ट बोल सकते हाँ हैं हाँ या फिर स्टार्ट बोल सकते हैं। हम्म, अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर रहे। हम्म। यू तो गॉट क्या, माय पॉइंट? या यू आई गॉट द पॉइंट। तो क्या होगा, ये आपने रो बना दी और आप चाहते हो कि रो सेंटर में हो, तो या तो आपको इस रो को दूसरी रो के अंदर रखनी है, या तो दूसरी कॉलम के अंदर रखनी है, या तो बॉक्स के अंदर रखनी है, राइट। ऐसे एज ए ओके। रो, ये एक रो है, तो इसका अभी पेरेंट कौन है, कोई नहीं है, इसका पेरेंट तो डायरेक्ट यही सरफेस ही है। तो अगर, यस। ओके, सी द क्लिप इज विजिबल, राइट, यू कैन सी। हम्म। ओके, और कोई गाइस है यार, कुछ बोलो मतलब कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ आपके पास शेयर करने जैसा है तो यू कैन से। हाँ, आई थिंक द सेशन इज गोइंग गुड। थैंक यू। Yeah, yeah, all is good. या ओके, देखो ये फिर से हो गया, ये प्रीव्यू का पंगा है, ठीक है। तो यू गॉट द पॉइंट, ओके। सो अभी मैं पहले रो का समझाता हूँ। पहले इसमें हमने और दो मॉडिफायर्स देखे थे, अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट। ये कॉलम्स में भी है, अलाइनमेंट और अरेंजमेंट, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके रो पे आपको कहाँ पर क्या पोजीशन करना है, दैट इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस लाइक प्रॉपर्टीज। सो अलाइनमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको पेंट्स में समझाता हूँ। ये अपनी रो है, एक सिंपल रो है, तो अलाइनमेंट मतलब का, अलाइनमेंट देखो वर्टिकल है, सी अलाइनमेंट इज ऑफ द टाइप अलाइनमेंट डॉट वर्टिकल क्लास। सो मान लो मुझे कोई टेक्स्ट यहाँ पर टॉप में रखना है या सेंटर में लिखना है, रो तो मैंने बना दी, या फिर बॉटम में लिखना है, तो उसके लिए आई विल यूज द वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। गॉट द पॉइंट, राइट। अलाइनमेंट मतलब वर्टिकली रो, ये रो मैंने बना दी, तो इसमें मान लो ये 50 dp की रो है मेरी, 50 dp, तो मुझे ये रो के स्टार्टिंग में लिखना है कुछ, सेंटर में रखना है या बॉटम में रखना है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके। एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में केस में क्या होगा, वो इट्स बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल क्लास। सो अरेंजमेंट मुझे कहाँ रखनी है, स्टार्ट में रखनी है, सेंटर में कुछ रखना है, या एंड में कुछ रखना है। गॉट द पॉइंट, राइट। रो के केस में अलाइनमेंट वर्टिकल और अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल। I think it's going to set if the views are three, child are three. It's more than it and Yes. Say, let's say if you have even if you have one child, this property will apply. Okay, so it's not like that. You if you have only multiple sides,
बट इफ यू हैव वन और मोर देन वन चाइल्ड देन दिस प्रॉपर्टी विल अप्लाई। तो इसमें पता पड़ रहा है अलाइनमेंट्स और अरेंजमेंट्स में, या फिर मैं और क्लियर करूँ? Yeah, थोड़ा और alignment, आ रही है सर। alignment and arrangement is clear if one or two or three properties are there. यस। तो अलाइनमेंट रो, सी रो के केस में बोल रहा हूँ, नोटिस दैट रो के केस में अलाइनमेंट वर्टिकल है, अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है। अरेंज ऐसे करना है, अलाइन ऐसे करना है, ठीक है। कॉलम के केस में उल्टा है, क्योंकि रो और कॉलम एक दूसरे के उल्टे है, राइट। तो कॉलम के यस केस में अरेंजमेंट वर्टिकल हो गया और अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, सेम थिंग। इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो ये कॉलम मैंने बनाई, तो वर्टिकली कहाँ अरेंज करना है, स्टार्ट पे, सेंटर पे या बॉटम पे, तो दैट इज यस डिफाइंड बाय द वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंज कहाँ करना है। और अलाइन कैसे करना है, इस कॉलम पे यहाँ पर मुझे स्टार्ट में रखना है, हॉरिजॉन्टली बीच में रखना है, या फिर यहाँ रखना है, एंड ठीक है। दैट इज फॉर द अलाइनमेंट। तो रो और कॉलम के केस में कॉन्ट्राडिक्ट होगा, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट, रो के केस में वर्टिकल अलाइनमेंट, कॉलम के केस में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी कॉलम के केस में आप अलाइनमेंट डॉट वर्टिकल पास करोगे ना, तो वो एरर दे देगा, क्योंकि इसका अलाइनमेंट क्लास है अलाइनमेंट डॉट हॉरिजॉन्टल, ओके। तो इस अभी मान लो इसको प्रैक्टिकल यूज करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मान लो कि ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, मुझे इन 3 को ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे रखना है कि ये तीनों के तीनों आ जाए फाइल में, और दोनों सबके भी सेम स्पेस रहे। तो फिर हॉरिजॉन्टल के लिए मैं हॉरिजॉन्टल यूज करता हूँ अरेंजमेंट, ओके। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इक्वल टू अरेंजमेंट अरेंजमेंट डॉट सेंटर भी रख सकता हूँ। अभी मैंने सेंटर रखा, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। एक मिनट में फिल में स्विच कर लो ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, क्योंकि ये तो अच्छा यार, स्टेबल ही यूज़ करता मैं, ये तो आ, गलती हो गई मेरे से, ऐसे ये कैनरी में यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि कैनरी में ना लाइव एडिट्स का एकदम धांसू फीचर है। जैसे अपने वेब में कैसे अपन HTML या जावास्क्रिप्ट या CSS एडिट की तो इंस्टेंट अपना दे देता है प्रीव्यू, ऐसा ये कैनरी में एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है, जो भी स्टेबल में नहीं है, इसलिए मैंने रखा था। बट आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फीचर इन दिस सेशन, ओके, बिकॉज टाइम ही नहीं। सी सेंटर पे रखा, तो इसने पूरा सेंटर में ले लिया सब कंटेंट्स को, तीनों तीन को, राइट, यस ओके। अभी मैं इसको रखता हूँ स्पेस बिटवीन, ये प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। तो अभी ये क्या करेगा, सब कंटेंट के बीच स्पेस रख देगा, सब फुल ऑक्यूपाई कर लेगा और सब कंटेंट के बीच स्पेस रख देगा। सी वेलकम टू यहाँ पर है, जेट पैक बीच में है और कंपोज लास्ट में है। तो ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट हो गया हॉरिजॉन्टली। गॉट द आइडिया, राइट? यस काइंड ऑफ वेट हाँ, ऐसे बोल सकते हो आप कि ये ऐसे वो वहाँ अरेंज कैसे करना है उसके लिए अरेंजमेंट प्रॉपर्टी, अलाइन कैसे करना है उसके लिए अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, रो के लिए अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट वर्टिकल, कॉलम के लिए अरेंजमेंट वर्टिकल, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कॉलम का ऐसे बता दूं या फिर यू गॉट द आइडिया? आई थिंक आई एम ओके विद इट। अगर किसी को ओके, सो पूछना अगर हो किसी को ऐसे मतलब प्रैक्टिकली देखना है, तो फिर मैं दिखा, या देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। I'm also okay with it. ओके, तो ये uh, y- For या the box, if we are declaring box, so it's like that.
do we write rows and columns or boxes Naina, your separate? voice is breaking. Okay, hello. Hello. Yes, your voice is breaking. Okay. Uh, yeah, my question is, when we use box, so inside box we use rows and columns, or box with separate activity like rows and columns. Yeah. So, uh, okay. So you asked that if you use the box, does box have rows and column, or it's a separate entity, right? Yes. Yeah. Okay. So see, all of them, rows, column, and box are separate entity, and you can use anything on that. ओके सो अभी मैं बॉक्स का हाँ ये अच्छा एग्जांपल है ये कॉलम भी है अपने पास ये रो भी है तो ये दोनों को मैं बॉक्स पे प्लेस करके आपको दिखाता हूँ ठीक है तो बॉक्स में कैसा होगा तो बॉक्स एग्जांपल ठीक है तो ये मैंने बॉक्स लिया यहाँ पर ठीक है मॉडिफायर कुछ नहीं देना एग्जांपल तो अभी मान लो मैं ऐसे ही रो फॉर्म में इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ माई रो एग्जांपल और इसके नीचे माई कॉलम एग्जांपल ये बॉक्स में मैंने रख दिया ठीक है तो अभी इसका कंटेंट कैसा होगा ये अपन देखते हैं आ, आ, ये रो वाला है और ये कॉलम वाला है तो बॉक्स का एक स्पेसिफिक थिंग क्या है क्योंकि बॉक्स का देखो कोई अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऐसा है नहीं बॉक्स ऐसा क्या है एक बॉक्स बना दिया आपने उसके अंदर कुछ भी जो चाहे डाल दो रो के अंदर तो है कि भाई रो है हॉरिजॉन्टल कॉलम है वर्टिकल बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो बॉक्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अलाइन ही प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें जो वैल्यू एक्सेसिबल है वो रो और कॉलम में नहीं है क्या मैं आपको दिखाता हूँ ये अपना मान लो एक बॉक्स है तो बॉक्स आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देगा आपको टॉप में रखना है टॉप सेंटर में रखना है टॉप एंड पे रखना है सेंटर स्टार्ट में रखना है सिर्फ सेंटर पे रखना है सेंटर एंड पे रखना है बॉटम स्टार्ट पे रखना है बॉटम सेंटर या फिर बॉटम एंड ओके ये 9 पार्ट्स आप समझ गए राइट कि कहाँ पर क्या रखना है हमें तो वी कैन डिफाइन दैट थिंग्स इन दिस थिंग्स इन बॉक्स सो ये देखो बॉक्स आ गया ऐसे ही वेलकम टू जेटपैक कंपोज ओके अभी मान लो मुझे इसको रखना है बॉक्स के स्टार्टिंग में तो मैं क्या करूँगा मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट अलाइन आई थिंक आप बॉक्स पे नहीं दे रहे हो हाँ हाँ रो एग्जांपल मैं बॉक्स पे नहीं दे रहा हूँ हाँ ओके, हाँ हाँ ये और या अम, आप पहले करिए आई थिंक मेरा शायद क्वेश्चन पुशिंग हो जाए आप एक बार मॉडिफायर डालिए बॉक्स पे ओके तो ओके तो अभी ओके मैं एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ ये आप मॉडिफायर पास भी कर सकते हैं देखो जैसे देखो ये मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर इक्वल टू डिफॉल्ट मॉडिफायर ये यहाँ पर मैंने पास किया डिफॉल्ट मॉडिफायर तो अगर और इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मैंने यूज कर लिया इसमें भी एक सेम मॉडिफायर दे देता हूँ मैं ताकि मैं बॉक्स में से पास कर सकूँ राइट मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर इसको ही मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो अभी मान लो बॉक्स के अंदर मैं ये बॉक्स पे नहीं लगा रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे बॉक्स को कहीं अलाइन नहीं करना है बॉक्स अगर मुझे बॉक्स को अलाइन करना होता तो फिर वो बॉक्स को रखता मैं कॉलम या रो के अंदर मैं ऐसे ही बॉक्स ले रहा हूँ बॉक्स के अंदर ये दो चीजें डाल रहा हूँ मुझे इसको अलाइन करना है ठीक है तो ये रो को मुझे रखनी है मान लो स्टार्ट पे ठीक है तो अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट डॉट टॉप स्टार्ट और इसको रखनी है मुझे बॉटम एंड पे मान लो ये वाला
तो रखनी है बॉटम एंड पे। So in simple term, box is constraint layout. uh, हाँ, you could say like that कि box is it's kind of constraint layout that you can put things wherever you want. Okay. And align them हाँ, accordingly, अलाइन right? कर। ओके, अभी अभी आप बॉक्स पे देखोगे ना, तो ये अलाइन फंक्शन है, वो अलाइनमेंट ले रहा है। देखो, कॉलम और केस रो के केस में अलाइनमेंट डॉट हॉरिजॉन्टल और अलाइनमेंट डॉट वर्टिकल ले रहा था, राइट। तो इस पे सिर्फ अलाइनमेंट ले रहा है। तो अब ये सिर्फ अलाइनमेंट ले रहा है, इसलिए वी कैन यूज एनी ऑफ दिस 9 ऑप्शन। रो और कॉलम के केस में या तो आप वर्टिकल यूज करो या तो हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं था कि कहीं पर, ये देखो ये प्रीव्यू बन गया। ये रो टॉप स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुई रो, कॉलम बॉटम एंड यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो रहा है ओवरलैप, ये कंपोज वाला और ये वेलकम टू, ये दोनों हो रहे ओवरलैप। यू गॉट द Yes, पॉइंट, राइट। yes. तो अभी अभी चलो आप मुझे बताओ, मुझे ओवरलैप नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा। बॉक्स को फुल विड्थ हाँ, बॉक्स को फुल विथ देना है। लेकिन फुल विथ ही है। मॉडिफाई ओके, मॉडिफायर, ओके लेट्स डू इट। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ। ओके, सी बॉक्स तो ऑलरेडी फुल विथ ही यूज करता है। लाइक सी इट्स ओके। आप अपन ऐसे करते जाएंगे ना तो ज्यादा पता पड़ेगा। बॉक्स को मान लो, ओके चलो। दोनों को एक कॉलम में रख देते हैं। हाँ, ये कौन बोला। मैं बस बस, हाँ बस करेक्ट। हाँ, मैंने बोला था ना आपको ऐसे सोचना है कि ये ऊपर है, इसको रखना है नीचे। तो ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट कहाँ था, कॉलम में, राइट। यू गॉट द पॉइंट, राइट। कॉलम बना दी मैंने यहाँ पर, एक बना दी। और इसको अभी देखना एरर आएगी। देखो एरर आई, ठीक है, क्योंकि कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट क्लास का नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं दे सकते ऐसे। वो बॉक्स का था। भी मान लो मैं इसको हटा दूं तो कॉलम रख दिया, सॉरी ये पूरा मॉडिफायर ही हटा देता हूँ। राइट, ओके, अभी ये दिखाएगा ऐसे नीचे। कॉलम के अंदर रो है, रो के अंदर 3 टेक्स्ट है, कॉलम के अंदर दूसरी कॉलम है, उसके अंदर 3 टेक्स्ट है। ओके, so for the compose you need to think in terms of rows and columns। ये देखो हो गया, ये पहली वाली रो के अंदर 3, और ये दूसरी वाली कॉलम के अंदर 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है। Yes. Yes. हाँ, और किसी को क्वेश्चन इसमें। so now like if you Play. want to align it bottom right तो उसमें कॉलम के अंदर अलाइनमेंट हाँ, के अरेंजमेंट हमें देना है। कॉलम के अंदर अलाइनमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट सिर्फ ओनली ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, रो के अंदर अलाइनमेंट है लेकिन ओनली ऑन द वर्टिकल एक्सिस। बॉक्स के अंदर एक्सिस नहीं है, आप कुछ भी रखो, ठीक है। तो कॉलम के अंदर मुझे अलाइन, चलो आप मतलब बोलो कि किसको कहाँ रखना है, और उधर हम ट्राई करके देखते हैं। कोई आप बताओ कि ये टेक्स्ट को यहाँ रखना है। यहाँ अभी पे जो हम बॉटम राइट में हमें रखना है कॉलम वाला माय कॉलम एग्जांपल को हम राइट साइड में बॉटम में बॉटम राइट में मतलब यहाँ पर। yes, ओके, सो उसके लिए हमें ये कॉलम हो गई। तो अभी इसको एक मिनट देखते हैं। तो अभी उसकी हम एक मिनट, हम सिर्फ मॉडिफायर ही दे रहे हैं, तो अरेंज वो यहाँ पर पास नहीं कर रहे। तो मान लो कि वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पास करता हूँ। यहाँ पर मान लो मुझे पास करनी है ये। एक मिनट में मैं आपको समझाता हूँ पूरा। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा रेडी है। ठीक है, तो अभी मुझे इसको बॉटम राइट पे करना था। ठीक है, तो बॉटम मतलब आ, ये है अपना हॉरिजॉन्टल थिंग। तो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक ये कॉलम है अपना। ठीक है, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल स्टार्ट है, ये अपना हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये अपना हॉरिजॉन्टल एंड है। ठीक है, तो मुझे इसमें हॉरिजॉन्टल एंड पे रखना है। मतलब बेसिकली वही होगा, राइट, जो आपने बॉटम राइट वाला बोला। अभी मैं दिखाता हूँ अलाइनमेंट डॉट एंड। फिर मैंने ऐसे एंड पास किया तो वो लग जाएगा इस साइड। ठीक है, मीनवाइल आपने वो फंक्शन में चेंज किया। ओके ओके ओके, तो सी वन वन मिनट कॉलम। हाँ, तो ये क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये कॉलम में अपन ने कुछ ओके 1 मिनट, इसका रेंडर हो जाने देते। हाँ हाँ, बोलिए, आपको कोई कोई तो बोल रहा था। इन दैट एग्जांपल वो एक बार आप स्क्रीन शेयर करना हो स्टूडियो। हाँ हाँ इसमें हमने एक्चुअली मतलब जो इसके अंदर अभी जो हुआ है वो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट सेट हो गया, राइट? टेक्स्ट का नहीं, सी टेक्स्ट के अंदर मैं वो नहीं दे रहा हूँ, कुछ अलाइनमेंट कर रहा हूँ मैं पूरे ये पूरे एंटायर कॉलम कंपोजेबल का। सी, टेक्स्ट का कुछ ओके नहीं दे रहा हूँ मैं। टेक्स्ट को कॉलम कॉलम एक कंटेनर है, उसके अंदर सब टेक्स्ट भरा है। तो ये जाएंगे तो ये तीन लाइन साथ में जाएगी। ओके ओके, तो ठीक है, कॉलम का हमने काइंड ऑफ ग्रेविटी जैसे सेट कर दिया एंड हाँ, तो ऐसे यहाँ पर से अपन दे सकते हैं। और ये कॉलम नहीं, हाँ, ये कॉलम का अलाइनमेंट स्टार्ट लगा है ना, ये कॉलम का अलाइनमेंट स्टार्ट लगा है, राइट। तो इसका स्टार्ट लगा है, तो ये स्टार्ट में ही रखेगा। अब ओके, ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो आप सोचो, अभी मैंने यहाँ पर आ, ये एक इश्यू ना, इश्यू तो नहीं, मतलब ये जानने जैसा है। आप देखो, अभी इस साइड नहीं गया था, राइट। तो क्यों ये लगाया है मैंने अलाइनमेंट, फिर भी नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये कॉलम का देखो, इसका बाय डिफॉल्ट कौन सा है, स्टार्ट। तो कॉलम के अंदर ये जितना भी होगा उसका लगेगा इसका। तो मान लो अगर मुझे लेना है ये, अगर मैंने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे तो ये इधर ही रखना है, तो फिर मैं, आप बताओ कौन सा कंपोजेबल रखूं। आप मैं हिंट देता हूँ, मुझे ये पूरी लाइन लेनी है। रो, हाँ पूरा रो देना होगा। परफेक्ट उस परफेक्ट रो के अंदर वो माय कॉलम एग्जांपल जाएगा परफेक्ट परफेक्ट, ये रो मैंने लगा दी। और उस रो का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल एंड होगा। हाँ ओके, तो इसका अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल और इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट एंड। है ओके, तो इसकी अब जरूरत नहीं। यू गॉट द आइडिया, राइट, कि कंपोज में हाउ वी नीड टू थिंक, ऐसे दिखना, थिंक करना है। ओके ओके, ये क्या है, इक्वल टू, मैं डिफॉल्ट्स दे देता हूँ। अभी इसको देखते हैं हुआ कुछ।
रो उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमने दिया है एंड का। तो यहाँ पर हमने कुछ अलाइनमेंट दिया है नहीं, अभी तो वो एक्चुअली कॉलम का ले रहा है ना। हाँ ये हाँ कॉलम का तो यही है, कॉलम अभी ले रहा तो कॉलम का, लेकिन रो के अंदर भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना ओरिजेंटल अरेंजमेंट, रो का अरेंजमेंट होना चाहिए मेरा एंड से, राइट। ये कॉलम मेरी ये है, ये रो मेरी आ गई ये, तो ये जाना चाहिए इधर पे। तो तो ये होना तो चाहिए, आई एम नॉट श्योर। एक 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 चीज में ट्राई करना चाहता हूँ, हाँ श्योर। मॉडिफायर हम लोग फिल मैक्स फिल विड्थ कर दें, कॉलम का रो का रो या लेट्स डू इट। क्या रो का तो डिफॉल्ट मैक्स फिल मैक्स विड्थ होगा। नहीं उसका आप सोच यू कैन थिंक ऑफ काइंड रैप कंटेंट। ओके, तो लेट्स सी। हाँ करेक्ट। सो अब शायद ये हो जाना चाहिए, राइट, बिकॉज ये रैप कंटेंट था तो उसकी बाउंड्री यहाँ पर ही आ गई ना। बट लेट्स सी। एक्चुअली मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं अभी भी एक्सएमएल के टर्म्स में ही सोच रहे हैं, जो आपने इनिशियली कहा था कि यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ राइट। देखो सी आ गए यहाँ पर। करेक्ट परफेक्ट। तो बाकी सब लोग कोई ऐसा है जिसको ये मतलब पता नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पर? एनीवन कि मतलब सबको पता पड़ गया तो मैं एक्सप्लेन ना करूँ? जी आगे समझ, उसकी विद वो रैप पे ले रहा था, मैच फिल नहीं हुई थी। राइट। तो ये पहले था, इतना था, आगे था, तो उसका बाय डिफॉल्ट होता है रैप कंटेंट, मतलब आप जो एक्सएमएल में यूज करते हैं। तो ये इतना कंटेंट उसने ले लिया, तो इसका स्टार्ट भी यहाँ एंड भी यहाँ, वो आगे था तब, तो वो अरेंजमेंट तो कर रहा था लेकिन यहाँ पर ही कर रहा था, ठीक है। और अभी हमने उसको दे दिया फिल मैक्स विथ, तो उसने पूरी मैक्स विथ ले ली और फिर उसको अरेंज किया। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। ओके, इसको करने का एक और दूसरा तरीका जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि हाँ आप जो जो ये कॉलम बना रहे हैं, हाँ वो कॉलम का हम जो डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं, कॉलम का डिफॉल्ट हम अलाइनमेंट जो है अलाइनमेंट डॉट हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल, उसको अगर अपन एंड कर दे तो भी ये हो सकता है। हाँ, तो भी ये हो सकता है, लेकिन तब क्या होगा, तब क्या होगा अगर इसमें हमने फिल मैक्स विथ नहीं रखी, ठीक है, तो फिर ये दोनों आ जाएंगे, तो ये स्टार्ट से नहीं होगा, हाँ तो ये भी इस साइड चला जाएगा ऐसे। हाँ, एंड अलाइन हो जाए। हाँ, एंड अलाइन हो जाएगा। तो कॉलम का बाय डिफॉल्ट रखा है, क्योंकि हमें इसको रखना है स्टार्ट से, तो इसको स्टार्ट से रख दिया, फिर ये नीचे वाले को ले जाना है इधर, तो हमने इसको मॉडिफायर दे दिया फिल मैक्स विथ एंड देन अरेंजमेंट। ओके ओके, सो एक चीज या आपने बोली थी, यस आपने ये बोला था कि जो मतलब अपन जो कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन बाय लाइन होता है, मतलब सीक्वेंस मैटर करता है, तो वो सिर्फ मॉडिफायर के केस में होता है या किसी और केस में? नहीं, वो सिर्फ मॉडिफायर के केस में, और मॉडिफायर के केस में, और मॉडिफायर आप जो भी दोगे लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होगा, पहले जो दिया वो पहले, फिर बाद में दिया जो दिया, ठीक है। और यूआई के केस में अगर मैं ये कॉलम हटा दूं
मान लो अगर ये कॉलम मैंने हटा दिया और सिर्फ मान लो इतना रखा मैंने सिर्फ, ठीक है, तो ये कंपाइलर को पता नहीं है कि मेरे पास 3 टेक्स्ट तो आ गए, लेकिन उसको रखूं कैसे मैं, तो वो उसको एक ही जगह पर ओवरलैप कर देगा, ठीक है। ओके। तो उसके पास 3 टेक्स्ट तो आ गए, लेकिन उसको पता नहीं कि भाई मुझे कौन से लेआउट में रखना है, ठीक है। तो अभी देखो ये ओके, हाँ अभी तो ये रो है, देखो अभी ये नीचे थे राइट, कॉलम मैंने हटा दिया और अभी ये सिर्फ रो के अंदर है, यू गॉट द आइडिया राइट, ये वाला है रो के अंदर। तो कंपाइलर कैसे ट्रीट करेगा कि भाई ये तीनों तीन रो के अंदर है, अगर मैं यहाँ से रो भी हटा दूं तो फिर ये हो जाएगा ओवरलैप, क्योंकि उसका कोई पेरेंट लेआउट नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। हाँ राइट, अभी भी नहीं होगा, सी अभी अभी कोई मुझे बता सकता है कि अभी भी ये ओवरलैप क्यों नहीं हुआ? का पेरेंट लेआउट कॉलम है। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, उसका पेरेंट लेआउट कॉलम, ठीक है। तो अभी इसको एक चाइल्ड गिनेगा, इसको एक चाइल्ड, इसको एक चाइल्ड और इसको एक चाइल्ड, तो ऐसे वो दिखाएगा। अगर मैं ये कॉलम भी हटा दूं तो फिर हो जाएगा इसका बॉक्स। अभी देखते हैं। हाँ तो कोई शायद धनंजय आप कुछ बोल रहे थे। नो, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, बट एक चीज आई थिंक डीबगिंग कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। या सो अगर आप मतलब यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस, कभी कभी होता है, मेरे से भी होता है कि ये देखो ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। कंपाइलर के पास आया तो सब, लेकिन उसको पता ही नहीं है किसको कहाँ रखना है, तो उसने कर दिया ओवरलैप यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ डीबगिंग ऐसा हो सकता है, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और इफ यू आर एक्सपीरियंस तो इट विल बी लाइक इजी। और ये तो अभी टाइम भी ले रहा था काफ़ी ज़्यादा रेंडरिंग में, तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी आर ओवर रन, so we have to stop with these things, like आज क्या देखा कि क्या है कंपोज, क्यों यूज करना है, और उस इसके बेसिक्स, ये तीनों सी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिलीव मी, लाइक अगर आपको रोज कॉलम और बॉक्स आता है ना, यू कैन बिल्ड एनीथिंग, बिकॉज आई हैव 2 प्रोडक्शन ऐप फॉर माई सेल्फ। मैं आपको एक सैंपल्स दिखा दूँ शायद, ठीक है। ये मैंने मतलब ये प्रोजेक्ट्स बना के अबेंडोन्स बहुत कर देता हूँ, तो ये दोनों पूरी की पूरी कंपोजेबल्स है, सब कंपोज है। तो आपको पता पड़ गया ना कि इसको कैसे कहाँ यूज करना है, तो कंपोज विल बी इजी, वेरी इजी। और आ, ये जो रिसाइकलर व्यू के साथ किन लोगों ने काम किया है, रिसाइकलर व्यू के साथ आप में से किया है किसी ने? मैं भी किया हूँ। जी जी Yeah, mostly all of us. या ओके, तो ये अभी जो आपको 10 लाइन दिख रही है ना, ये कंपोज का रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। और आप एक्सएमएल में क्या करना है, एडेप्टर बनाना है, व्यू होल्डर बनाना है, अटैच करना है कुछ। यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको उसका, इट्स लाइक अ ग्लोरी ऑफ कंपोज। तो नेक्स्ट सेशन में डिटेल्स में देखेंगे, बट मैं अभी वी आर ओवर रन, तो सिंपल 2 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है। राजेश, हाँ। दिव्यांश ने एक वो भी चैट में भी डाला है, एक बार वो देख ले, मेरा भी काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है। Okay, can we say box is a kind of frame layout as it overlaps but not like staggered layout in terms of XML? हाँ, तो फ्रेम लेआउट में मुझे तो सी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो XML का अब इतना याद भी नहीं है, क्योंकि 2 साल से तो मैं कंपोज कर रहा हूँ। तो फ्रेम लेआउट में ओवरलैप अगर नहीं होता है तो यू कैन थिंक ऑफ इट काइंड ऑफ अ फ्रेम लेआउट, ओके। स्टेगर्ड तो नहीं होगा, स्टेगर्ड तो बॉक्स डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि स्टेगर्ड में तो क्या ओवरलैप नहीं होता है, स्टेगर्ड में तो एक के बाजू में या नीचे होता है, राइट।
तो बॉक्स इज नॉट स्टेगर्ड, बट अगर हाँ फ्रेम में ओवरलैप होता है तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ओके दिव्यांश। So like all of us are still thinking in terms of XML and linear layout, frame layout, constraint layout. हाँ राइट। एक्चुअली नथिंग रॉन्ग विद दैट, अगर चीज समझ में आ रही है ना, समझ रहे आप हो, बॉक्स को जैसे हाँ फ्रेम लेआउट के साथ कंसीडर कर रहे हो तो आपको चीजें समझ आ जा रही है ना कि बॉक्स है उसमें व्यूज ड्रॉप कर रहे हो, दैट्स इट। अब उनको अलाइन कर कैसे करना है, कैसे वो किसको किसके साथ ऑर्डर करना, उसके लिए अंदर एक और कंटेनर हम यूज कर रहे हैं ना। राइट राइट, उसको अभी सी यू हैव टू थिंक इन कंपोज, बट if you can connect these things with your existing XML views, it will be more easier to understand। आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बट वंस यू लाइक गेट द एग्जैक्टली। आइडिया यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोज। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम? लिस्ट एग्जाम्पल पे। तो अभी मान लो आप रिसाइकलर व्यू बनाएगा ना, तो 10 से 15 मिनट तो बन ही जाएगा सिंपल बनाने के लिए भी। तो लाइक राजेश, कभी ओवरफ्लो ना हो जाए। सही, लाइक मेरा क्वेश्चन यही है। क्या ओवरफ्लो ना हो जाए? क्या मैं भी वही पूछने लगा था। ओवरफ्लो लाइक सारी चीजें एकदम माइंड से ओवरफ्लो ना होना स्टार्ट हो जाए। हाँ चलो हाँ, मैंने बॉक्स भी सीख लिया, रो भी सीख ली है, नहीं नहीं, ये तो और कॉलम भी सीख लिया है, अभी मैं रिसाइकलर व्यू पर भी मूव कर रहा हूँ। राइट राइट। सी नहीं, हम मूव नहीं कर रहे। सी आई एम जस्ट सेइंग दैट 2 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वो करना है। अभी इस पे हम जा ही नहीं रहे, इस पे जाएंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। आप इट्स लाइक अ हाईलाइट। ओके, सो अभी मैंने ये बनाया इट्स लिस्ट। लाइक जैसे एकता कपूर के सीरियल में हम थोड़ा सा हाँ नेक्स्ट हाँ, वो एपिसोड का वो नेक्स्ट दिखा देखते हैं देते ना, हैं। वो वाला। हाँ बट There should be a well, I think. ओके ओके, सॉरी। अरे भूल गया। मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया, आई थॉट इसमें वीए होता है। तो रखिएगा। हाँ यार, नेक्स्ट टाइम तो मैं स्टेबल ही यूज करूंगा, ये तो नहीं करना। ठीक है, आइकन कॉलम 1। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम। बड़ा हैंग हो रहा है यार इस सिस्टम पे, लोगों का टाइम भी बर्बाद कर रहा How much is your RAM, Rajesh? है। इट्स 8 GB। Oh, you actually should upgrade it to at least 16. Yes. See, one thing is, Studio works like it's okay with the 8 GB, but as I said, this is the can rebuild, right? So stable build would not take this much of time. ये प्रीव्यू दिखा दूं मैं आपको, फिर लाइक वी कैन एंड अप द कॉल। So it's kind of ये प्रीव्यू आप लास्ट देख लो कि कंपोज मतलब कितना इजी और कितना पावरफुल है। ये कितनी लाइंस लिखी मैंने? अ, 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 शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन। ठीक है, 9 लाइन में बन गया मेरा रिसाइकलर व्यू, जो कि प्रिंट करेगा 1 से 100 आइटम्स तक। build it, ये लास्ट वाला कर देते। तो सी यू कैन सी हाउ इजी इट इज, राइट? बिकॉज ना तो एडेप्टर करना है, ना तो कुछ बाइंडिंग करना है, ना तो कुछ वो करना है, ना तो। एंड यस, वन थिंग, लेजी कॉलम एक्चुअली एक्ट्स लाइक रिसाइकलर व्यू। जो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है उसको वो ड्रॉ भी नहीं करेगा, लाइक रिसाइकल ही कर लेगा। ओके, तो दिस इज द कंपोज काउंटर पार्ट ऑफ द रिसाइकलर व्यू। ओके, ये प्रिंट हो जाए तब
तो आज देखा बॉक्स का था तो, और कॉलम्स क्या होते हैं, ये टाइम लेगा यार, चलो छोड़ो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। तो आज बेसिक्स देखा अपन ने। नेक्स्ट सेशन करना है, नेक्स्ट सेशन लाइक इफ इट्स इंटरेस्ट यू देन वी कैन प्लान इट, हाँ, बिकॉज Sure, sure. जी जी, श्योर, लाजमी। हाँ अच्छा, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन था राजेश। या लाइक आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर फिर रोज एंड कॉलम्स में हमने लाइन किया चीजों को, है ना, लेफ्ट राइट जहाँ भी करना है। हम्म। तो हर चीज में बॉक्स, रोज एंड कॉलम, यही तीन व्यूज कहते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम में व्यूज हाँ कहते हैं, वैसे ये तीन कंपोनेंट है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट जो भी आपको करना है तीन ही कंपोनेंट, बॉक्स। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। इसीलिए तो मैंने बोला कि विद दिस थ्री कंपोनेंट्स यू कैन बिल्ड एनी यूआई। आपको कुछ भी करना है, कितना भी कॉम्प्लेक्स इंस्टाग्राम बनाना है, मैं आपको ये गिट पे है, जेट इंस्टाग्राम, बाकी भी होता है, लेकिन अ, आप ये तीन को सीख गए ना तो यू कैन बिल्ड एनीथिंग। ये जेट इंस्टाग्राम इसका क्लोन है यूआई का, बिल्ड विद कंपोज। सो आप देखना इसको जाके, तो सी अभी अभी मैं इसका एक, हाँ ये परफेक्ट, हाँ इसी परफेक्ट एग्जांपल देखो, ये एक रो है पूरा, ये कॉलम है, इसके अंदर दो रो है, इसका स्टार्ट है हॉरिजॉन्टल, इसका एंड है, इस ये लेजी रो है, इसमें मॉडिफायर में क्लिप लगाया हुआ है सर्कल शेप, गेट द आइडिया राइट। ये पूरा रो है, एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, इसका अलाइनमेंट है एंड पे, ये इमेज व्यू है, ये पूरा रो है, और ये पूरा का पूरा ये कॉलम है एक। सो इसमें काफी नेस्टिंग होती है क्या रोज एंड कॉलम्स की? हाँ, काफी नेस्टिंग्स होती है वो, बट वो परफॉर्मेंस भी है, ऐसा नहीं। एक्सएमएल में क्या था कि ज्यादा नेस्टिंग, लाइक दे वर नॉट, इट्स नॉट आइडियल टू यूज द नेस्टिंग लेआउट इन द एक्सएमएल, बट इसमें तो आप कितनी भी करो, कई सारी। और मैंने तो इतना नेस्टिंग किया है ना अपनी एप्स में, फंक्शन के अंदर फंक्शन की बहुत सारा है। तो वी विल हैव अ लुक और देखेंगे ये लेजी कॉलम्स क्या होता है, ये क्या होता है, फिर क्लिक कैसे हैंडल करनी है, रिकम्पोजिशन कैसे होता है, वो मेन पार्ट्स भी है, वो तो हमने देखे ही नहीं है। अगर आपने रिकम्पोजिशन नहीं समझा तो आपकी एप्लीकेशन मतलब उसकी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो वी विल प्लान द डिटेल्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू। सो अगर आई होप आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को भी मिला होगा। Yeah, it would be a very fruitful session. या ओके, सो ओके, इसमें दो चीजें सीखने को मिली, एक तो जेटपैक कंपोज, एक दूसरा हमें स्टेबल वर्जन यूज करना चाहिए। राइट करेक्ट। हाँ, स्टेबल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कैमरी तो बहुत लोड लेता है मेरे केस में, क्योंकि डेली के लिए तो मैं स्टेबल यूज करता हूँ, उतना नहीं लगता, इसलिए कैमरी में बहुत ज्यादा है। So, okay, so thank you all of you for joining, and I will let you know when we plan for the next session. Okay? बिल्कुल। थैंक यू राजेश, Yeah. Thank you, everyone. Thank you. अमेजिंग सेशन, थैंक्स। Yeah. Thank you, so- Rajat. Yeah. Thank you. थैंक यू राजेश। Bye. Thank you, Raj.